Hello everyone and welcome back to my channel. Okay, so for you people, I'm gonna introduce a new series. From today, I'm gonna post a video which is containing 10 questions. Now these 10 questions are for the MDS preparation. Yes, from today onwards, I'm starting my own preparation for the MDS, and I also like to enlighten you about some of the questions that are very important and frequently asked and are very important. Along with this, these are previous year questions, so I think previous year questions are very important for the practice, so I'm doing them for the first. And this is the very first video in which I'm going to post some of the questions. And because I don't want to make a video too long, that's why I'm just gonna post 10 questions at a one time. And if I get more time in a day, then I might be posting one or more, two, three videos for a day. But first of all, I'm going to start with the very first video, which is containing the 10 questions. Okay, so these questions are very important, I think, because each and every MDS aspirant uh, might be trying to do some of the previous year questions, and the very famous book for these questions is Pulse. Yes, that Pulse. But some of the reviews are also there that not only Pulse is not sufficient only, but I think for practicing the questions for MDS preparation, we need to do some of the previous year questions. So for this, I'm going to start first of all the third year topic, that is medicine, that is general medicine. So because recently I have seen that the paper is really set up in which the medicine is very much, and actually the focus of the examiner is on the medicine, on the pharma, along with the final year subjects. A very major focus was on the medicine and pharma, so that's why I'm pick upping this subject from the third year, that is medicine. And as well as I have just completed this, so I think it might be useful for me also. So and along with this, as you can see, the Pulse book, it's very expensive. Yes, everyone cannot afford this, and it is not only, it is also not sufficient. It is not sufficient for example, if you're just going to do this Pulse only and you're gonna pass, that is totally rubbish. For each and everything, as we have done previously for the NEET examination, UG, so that we prepare our syllabus, along with this we do the questions, and as the end comes, the things become more clear that we have to do more and more questions so that we get practice. That's why I'm focusing on these questions. So this is a journal medicine topic, and these are the questions. So I'm gonna do first 10 questions so that the video doesn't become too long. And if you like this video, then just please like it and subscribe to my channel. I'm trying this for the first time, and I think that there are most of the students who are not able to get the Pulse, and because I was also struggling for the book, but I managed to have that. So along with this, I'm also preparing for myself, so I think if you get some of the important questions for the MDS, I think it would be helpful for you. So okay, so without wasting more time, let's just come to the first question, that is, crepitus will be seen in the tissue surrounding an infection by, if some of the pronunciations of any word get like idhar udhar thoda, so don't take it too seriously, because I'm also reading all this very first, because I don't want to waste my time more. That's why I'm doing along with you. Okay, so cryptus will be seen in the tissue surrounding an infection by. Okay, so what does cryptus means? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, cracking sound in joints. That is cracking sounds in joints. Okay, sorry, where is my edit? Here it is. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? It's too much. Sorry. Okay. It's gonna be very little. What's too much? Okay, it's fine. Okay, so let's go for this. So what does cryptus means? Sorry.
What does cryptus means? I'm so sorry, I think my cursor is not working. Okay. Okay. So what does cryptus means? Cryptus का मतलब होता है कि एक cracking sound in joints. Cracking sound in joints का क्या मतलब होता है? मतलब क्या होता है कि ओके ओके तो इसका आंसर अभी हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इस जो क्लॉस्ट्रीडियम प्रेफरेंजेस है नाम का एक जो बैक्टीरिया है दैट कॉजेज गैस गैंग्रीन। आपने गैंग्रीन पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, मतलब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं ये ज्यूम करके चल रही हूँ कि वो मस्ट बी थर्ड और फाइनल ईयर के बच्चे होंगे, बिकॉज अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो अभी से आप प्रिपरेशन अगर करना शुरू करते हैं तो आपको आधी चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। तो आई थिंक आप सबको ही पता होगा कि गैस गैंग्रीन क्या होता है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, मायोनेक्रोसिस। गैस गैंग्रीन को मायोनेक्रोसिस भी बोलते हैं, तो दैट्स अ न्यू थिंग दैट वी शुड नो। Gas gangrene is characterized by skin color change from pallor to bronze. गैस गैंग्रीन का क्या मतलब होता है कि इसमें स्किन का कलर चेंज हो जाता है, पैलर से ब्रॉन्ज हो जाता है या पर्पल हो जाता है, एंड द स्किन इज टेंस एंड एक्जी ओके। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि जो स्किन है वो बहुत टेंस और टेंडर हो जाती है। टेंडर आपको मतलब पता है, टेंडर का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को टच करें और तब उसमें पेन हो तो हम उसको कहते हैं वो टेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्किन जो है वो टेंस और टेंडर हो जाती है। टेंस मतलब जब आप उसको टच करेंगे तो आप उसमें एक टेंशन सी फील होगी और साथ में पेन भी होगा। तो ऐसी स्किन जिसका कलर चेंज हो जाता है, पहले से ब्राउन या पर्पल डिस्कलरेशन हो जाती है और टेंस और टेंडर हो जाती है, तो उस स्किन में हम कह सकते हैं कि उसमें गैस गैंग्रीन हुई है, उसमें एक गैस भरी हुई है जो क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कॉज करता है। गैस इन द टिश्यूज में बी ऑब्वियस विद क्रिप्टस ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन और विजिबल ऑन रेडियोग्राफ। तो अब क्या होता है कि ये जो हमारा क्रिप्टस होता है दैट्स ऑब्वियस, जिन टिश्यूज में गैस गैंग्रीन होती है उसमें ये चीज़ ऑब्वियस होती है। तो ये हमें पता नहीं था, जो हमें अभी पता चली है नई चीज़। आगे बढ़ते हैं। सर्जिकल डेब्रिडमेंट एंटीबायोटिक थेरेपी विद हाई डोज आईवी पेनिसिलिन क्लिंडामाइसिन मेट्रोनिडाजोल एंड हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी आर यूज फॉर ट्रीटिंग गैस गैंग्रीन। तो ये इसका ट्रीटमेंट इन्होंने दिया हुआ है कि आप सर्जिकल डेब्रिडमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी नेक्रोज्ड और डेड टिश्यू होता है उसको वहाँ से निकालना, साफ कर लेना, काट के निकाल देना, दैट इज़ सर्जिकल डेब्रिडमेंट। और साथ में उसको एंटीबायोटिक्स की थेरेपी देना, जैसे कि पेनिसिलिन दे सकते हैं, क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं। तो ये सारी एंटीबायोटिक्स का मतलब एक प्रॉपर डोज चलता है विद हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। साथ में बंदे को ऑक्सीजन की थेरेपी भी दी जाती है और यूज फॉर ट्रीटिंग गैस गैंग्रीन। तो गैस गैंग्रीन का ट्रीटमेंट है। नोट क्या है कि जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई होती है वो टेटनस कॉज करती है, और जो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिले होती है वो कॉज करती है स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है। तो टेटनाई हमको पता है कि टेटनस कॉज करती है, और जो डिफिसिलिस है वो कोलाइटिस कॉज करती है। एंड हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज ऑल्सो यूज फॉर ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस एंड क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। जो हमारा ऑक्सीजन थेरेपी होती है वो हम ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस नाम का एक जो वर्ड है हमें अभी एक्चुअली क्या है कि जो फाइनल ईयर है उसमें एक सब्जेक्ट आता है आपका ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी में एक पॉइंट था उसमें ये था कि अगर हम लाइक रेडिएशंस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस हो जाता है। तो दैट वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस एंड क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस आपको पता है, आपने पढ़ रखा है सेकेंड ईयर में। सो दिस इज़ द आंसर, दैट इज़ क्लॉस्ट्रीडियम प्रेफरेंजेस। तो जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि जो क्रिप्टस है विल बी सीन इन द टिश्यू सराउंडिंग एन इन्फेक्शन बाय, तो कौन से टिश्यू में दिखेगा ये, मतलब किसके द्वारा ये किया जाता है। तो इसके ये किया जाता है क्लॉस्ट्रीडियम प्रेफरेंजेस के द्वारा, क्योंकि टेटनाई जो है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई टेटनस कॉज करेगा, स्ट्रेप्टोकोकस अलग टाइप का इन्फेक्शन करेगा, स्टेफाइलोकोकस अलग टाइप का इन्फेक्शन करेगा, जो प्रेफरेंजेस है वो गैस गैंग्रीन करेगी, और गैस गैंग्रीन में क्रिप्टस होती है। क्रिप्टस का मतलब होता है क्रैकिंग साउंड इन जॉइंट्स। आई जस्ट गूगल इट, सो आई थिंक द
The answer is D. I just don't think I'm just sure about it because it's written in the book. Okay, so first question is done. Now move on to next question, that is congenital rubella syndrome may cause all of the following except. अब हमें ये बताना है कि जो congenital rubella syndrome होता है उसमें क्या क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए. तो इसमें ऑप्शंस अगर जो दिए हुए हैं वो है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और सेंसरी नर्व डेफनेस. आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा प्रॉपरली. इज इट विजिबल? ये जूम मीटिंग तो है नहीं जिसमें मैं आपसे पूछूंगा इज इट विजिबल और आप आंसर देंगे. बट ओके, क्योंकि काफ़ी थोड़ा बहुत दिख रहा है मुझे तो आई थिंक आपको भी दिख रहा होगा. ठीक है, तो कॉन्जेनाइटल रोवेला सिंड्रोम की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेट्स सी द आंसर अबाउट दिस. ओके, सो ओके, जो रूबेला है उसको हम जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं. आपको एक प्रॉपर पता होना चाहिए कि जो रूबेला होता है वो जर्मन मीजल्स को बोलते हैं. मीजल्स रूबेला आर समवट लिंक्ड. ठीक है, तो रूबेला इन अर्ली प्रेगनेंसी कॉजेज सिग्निफिकेंट कॉन्जेनाइटल. अब जब कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है तो ऑब्वियसली पता है कॉन्जेनाइटल का क्या मतलब होता है. ऐसी डिजीज जो मदर से फीटस में है, दैट इज कॉन्जेनाइटल. तो अभी क्या कह रहा है इस, तो मतलब हमें प्रेगनेंसी के दौरान दिखना है. इसमें जो टाइम पीरियड है वो प्रेगनेंसी वाला है. तो रूबेला इन अर्ली प्रेगनेंसी कॉजेज सिग्निफिकेंट कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज लाइक deafness, spontaneous abortion, congenital heart disease like persistent ductus arteriosus, atrial septal defect, etc. Rubella is transmitted by aerosol infection. ये भी आपको बताना चाहिए aerosols के थ्रू फैलती है. दूसरी ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब प्रेगनेंसी में ये क्या क्या कॉज करती है. बच्चे को बहरा बना सकती है, उस अबॉर्शन भी हो सकता है, मतलब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, और साथ में वो जो बच्चा पैदा होगा तो उसमें पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की बीमारी हो सकती है, उसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट दैट इज़ ASD हो सकता है. तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए. रूबेला जो कि जर्मन मीजल्स बोलते हैं हम इसे, इज कॉज बाय पैरामिक्सोवायरस. ये आपको बात पता होनी चाहिए कि पैरामिक्सोवायरस नाम का जो वायरस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंड स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस. Koplik spots on the buccal mucosa are characterized as small white spots surrounded by erythema. Okay, तो यहाँ पे हमें कॉप्लिक स्पॉट्स के बारे में बता रहे हैं कि जो कॉप्लिक स्पॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं. कॉप्लिक स्पॉट्स ऑन द बकल म्यूकोसा कैरेक्टराइज एज स्मॉल वाइट स्पॉट्स सराउंडेड बाय एरिथमा आर पैथोनोमोनिक ऑफ मीजल्स. पैथोजोनोमिक ऑफ मीजल्स मतलब देखो कॉप्लिक स्पॉट्स जो होते हैं वो हमारी बकल म्यूकोसा पे देखे जाते हैं. ठीक है, और ये क्या होते हैं कि स्मॉल से वाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं जिनके आसपास एक एरिथमा होता है, रेड कलर का आसपास एरिया होता है जो उसको सराउंड कर रहा होता है, और ये पैथोजेनिक होता है. यहाँ पे मतलब ये काफ़ी पैथोजेनिक होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म होता है. दिस इज फॉलोड बाय अपीयरेंस ऑफ रैश फर्स्ट ऑन द बैक ऑफ ईयर्स. इसके बाद क्या होता है कि पहले तो बकल म्यूकोसा पे आपको वाइट कलर के स्पॉट्स होंगे जो आसपास थोड़ा सा रेड कलर का एरिया होगा जो पैथोजेनिक होगा. उसके बाद क्या होगा कि इसके बाद आपको रैश दिखना शुरू होएगा. सबसे पहले आपको बैक ऑफ ईयर्स के पीछे रैश दिखाई देगा, हेयर लाइन पे दिखाई देगा और मैक्सिमम फेस पे दिखाई देगा. ठीक है, तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट बात है कि पहले आपको बकल म्यूकोसा पे वाइट कलर के स्पॉट्स होंगे जो रेड एरिया से सराउंडेड होंगे. उसके बाद आपको बैक ऑफ ईयर्स पे रैश दिखाई देगा, उसके बाद साथ में हेयर लाइन पे दिखाई देगा और मैक्सिमम फेस पे दिखाई देगा. निमोनिया, एन्सेफेलाइटिस एंड ओटाइटिस मीडिया आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रूबियोला. ठीक है, तो जो निमोनिया है, एन्सेफेलाइटिस है और ओटाइटिस मीडिया है. ओटाइटिस मीडिया, न्यूमोनिया और एन्सेफेलाइटिस, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं रूबियोला की. तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें आपको बताएंगे. रूबेला बताया हुआ है कि रूबियोला बताया हुआ है. रूबेला को जर्मन मीजल्स कहते हैं, रूबियोला को मीजल्स कहते हैं. रूबियोला जो है वो पैरामिक्सोवायरस की वजह से होता है और वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन जो रूबेला होता है वो एरोसोल इन्फेक्शन की वजह से होता है. ठीक है, जो रूबियोला है उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो है निमोनिया, एन्सेफेलाइटिस और ओटाइटिस मीडिया. साथ में हमें कॉप्लिक स्पॉट्स के बारे में भी बताया. तो अब हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ. इस क्वेश्चन में क्या था कि कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम may cause all the following except. तो कौन सी चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है.
पेटेंट एक्ट्रस, स्पॉन्टेनियस लेबर, सेंसरी नर्व डेफनेस, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तो इसका आंसर आएगा डी। तो इस हिसाब से हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन स्प्रेड्स बाय। हेपेटाइटिस ई किसकी वजह से फैलता है ये आपको बताना है। तो लेट्स सी टू द आंसर। हेपेटाइटिस ई जो है इसमें दिया हुआ है कि हेपेटाइटिस ए और ई स्प्रेड बाय फीको ओरल रूट, वाइल हेपेटाइटिस बी सी डी स्प्रेड बाय पेरेंटल रूट। जो हमारा ए और ई हेपेटाइटिस होता है वो हमारे फीको ओरल रूट से फैलता है। फीको ओरल रूट का मतलब क्या होता है कि भी जो आपका पैथोजन है या मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो आपके फीकल मैटर में निकलता है, और वो फीकल मैटर अगर मतलब किसी भी मोड से अगर गलती से आपके खाने को इन्फेक्ट कर देता है और फिर आप उसको खा लेते हैं तो क्या होगा, फीको ओरल रूट हो जाता है। ठीक है, और बाकी सारे पेरेंटल रूट से फैलते हैं। पेरेंटल रूट का क्या मतलब होता है, कोई भी आईवी इंजेक्शन जब हम देते हैं, कुछ भी चीज़ जो देते हैं वो पेरेंटल रूट होता है, तो उससे जब ब्लड से अगर कोई इन्फेक्शन फैलता है दैट इज दिस, और अगर फीको ओरल रूट से अगर कोई फैलता है दैट इज ए और ई। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वन लाइन क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर हेपेटाइटिस ई एक्सेप्ट। ई के लिए सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कौन सी करेक्ट नहीं है हमें ये बताना है। तो लेट्स सी द आंसर, हमें थोड़ा पता चलेगा कि भी ई है क्या। ओके, हेपेटाइटिस ई का अगर देखें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। इट इज़ कॉज्ड बाय HEV which is a RNA virus. It spreads by fecal oral route. Clinical illness resembles hepatitis A virus. ओके, मतलब क्लिनिकली अगर हम देखेंगे तो इसके ए के और ई के सिम्टम्स सेम होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन आर पर्टिकुलरली लाइबल टू एक्यूट हेपेटिक फेलियर। एक्यूट हेपेटिक फेलियर हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन को, और एपिडेमिक्स आर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली कॉज बाय हेपेटाइटिस ई वायरस। हेपेटाइटिस ई वायरस जो होता है वो एपिडेमिक कॉज करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें हेपेटाइटिस ई के बारे में बताई हैं। तो अब हमें पता चल गया कि नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस है, RNA वायरस है, फीको रूट से फैलता है, क्लिनिकल इलनेस ए जैसी सेम होती है, प्रेग्नेंट वुमेन में एक्यूट हेपेटिक फेलियर कॉज करता है और एपिडेमिक कॉज करता है। तो अब हमें बताना है इसमें कि कौन सा गलत है। तो पहला है कॉमनेस्ट कॉज फॉर एपिडेमिक इन इंडिया, दैट इज ट्रू। अफेक्ट्स चिल्ड्रन मोर देन एडल्ट्स, ये ऑप्शन नहीं आया। सी ऑप्शन है कॉजेज फ्लूमिनेंट हेपेटिक फेलियर, और डी ऑप्शन है इफेक्ट्स प्रेग्नेंट फीमेल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मोर्टेलिटी। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को में अफेक्ट होता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर्टेलिटी, तो इसका आंसर जो है वो है बी, मतलब ये प्रेग्नेंट फीमेल को अफेक्ट करता है। गलत आंसर क्या है कि भी चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, अडल्ट में कम होता है, ये चीज़ गलत है। दैट इज़ रॉन्ग अबाउट दिस। तो ई के बारे में हमें सारी चीज़ें पता चल गई कि कॉमनेस्ट कॉज है एपिडेमिक का इंडिया में, फ्लूमिनेंट हेपेटिक फेलियर कॉज करता है, और प्रेग्नेंट फीमेल्स में रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी मोर्टेलिटी के लिए, लेकिन ये बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है मेल्स एडल्ट्स के कंपैरिजन में। दैट्स द क्वेश्चन नंबर 4th. Now let's move to question number 5th, that is class 2 of HIV associated disease describes. ठीक है, तो class 2 of HIV associated disease describes. Let's see to the answer. Okay, ठीक है, तो class 2 की अगर class 2 इसमें लिखा हुआ है एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, आप देख सकते हैं क्लास 2 इसमें लिखा हुआ है एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। ओके, क्लास 2 इज ओके, सो क्लास 2 एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन इसमें यहाँ लिखा हुआ है, हमें यही पढ़ना है क्योंकि हमारा एसिम्प्टोमेटिक के बारे में ही इसमें बताया हुआ है। क्लास 1 क्या होता है, क्लास 1 में प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, फीवर, आर्थराइटिस, माइल्जिया होता है, और प्राइमरी इन्फेक्शन अकर्स 2 to 4 weeks आफ्टर एक्सपोजर और अपीयरेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटी-HIV एंटीबॉडीज। क्लास 3 में क्या होता है, परसिस्टेंट जनरलाइज्ड lymphadenopathy. It is defined as enlarged glands at greater than 2 extrainguinal sites. ठीक है, और फिर क्लास 4 में क्या होता है, एड्स सिंड्रोम हो जाता है, करेक्टराइज बाय स्पेसिफिक ऑप्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस
इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कैनिडियासिस हो सकती है, न्यूमोसाइटोसिस, न्यूमोसिस्टिस हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन हो सकता है, हर्ब सिम्प्लेक्स हो सकता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, मॉस्कुलम कॉन्टेजियोसम हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, हेपोसिसार्कोमा, नॉन हॉडकिन लिम्फोमा हो सकता है, और ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। ठीक है, तो हमें बताना था क्लास 2 के बारे में। जो हमारा क्लास 2 है दैट इज एसिम्टोमेटिक। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर बी है, दैट इज एसिम्टोमेटिक। Now let's move to the question number 6, that is secondary infections in HIV infected patients are classified under। HIV के जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं उनको क्लासीफाई कैसे करा जाता है सेकेंडरी इन्फेक्शंस को। तो हमने अभी पढ़ा था कि क्लास 1 में क्या था, क्लास 2 में एसिम्टोमेटिक था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्लास 3 है और जो क्लास 4 है उनमें से कोई ना कोई आंसर आएगा। तो क्लास 3 क्या है दोबारा देख लेते हैं। क्लास 3 में पर्सिस्टेंट जनरलाइज लिम्फोडेनोपैथी होती है। लिम्फ नोड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं इंग्वाइनल एरिया की। ठीक है, और साथ में क्या होता है कि लार्ज ग्लैंड्स जो आती हैं। क्लास 4 में इसने दिया हुआ है यहाँ पे कि बी इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक ऑप्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस जो है वो क्लास 4 में होते हैं बिकॉज स्पेसिफिक ऑप्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है कि पहले जो कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है उसके कारण जो वीकनेस आती है उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है दैट इज़ ऑप्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाते हैं। उन्हीं को ही हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया है डी, that is secondary infections in HIV infected patients are classified under class 4। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर है डी, दैट इज क्लास 4। क्योंकि क्लास 4 में हमारे कौन से इन्फेक्शंस होते हैं, ऑप्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं। ऑप्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आर कॉल्ड एज सेकेंडरी इन्फेक्शंस। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है ई बी वायरस इज एसोसिएटेड विद विच कार्सिनोमा। ईवी वायरस कौन सा होता है, एप्स्टीन बार वायरस होता है। एप्स्टीन बार वायरस एसोसिएटेड विद विच कार्सिनोमा, कौन सा कार्सिनोमा होता है। आइदर कार्सिनोमा ऑफ लैरिंक्स और ब्लैडर और नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा और क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। तो इसका आंसर जो है दैट इज सी, दैट इज नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन में देखें तो एप्स्टीन बार वायरस इज अ हर्ब्स वायरस एंड हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1। हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 में क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी स्टोमेटाइटिस या केराटोकंजक्टिवाइटिस या फिर एंसेफेलाइटिस या फिर हर्ब्स लेबियालिस या फिर हर्ब्स वीडियो, दैट इज फिंगर इन्फेक्शन। और HSV टाइप 2 में क्या होता है, जेनाइटल इन्फेक्शन होता है। ओके, तो क्या पूछा है इसने हमसे कि एप्स्टीन बार जो वायरस है वो किसका वायरस है। तो हमने कहा है नेसोफेरेंजियल वायरस है। ठीक है, तो हम इसकी सेकंड उस पर आते हैं। दिस इज द सेकंड स्लाइड, एज यू कैन सी, यू कैन टर्न योर फोन एंड यू कैन सी साइटोमेगालो वायरस आ गया। फिर एप्स्टीन बार वायरस में फिर से आप देख सकते हैं सेकंड कॉलम में एप्स्टीन बार वायरस, इसमें लिखा हुआ है इन्फेक्शनस मोनोन्यूक्लियोसिस, बर्किट्स लिम्फोमा, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा और ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, तो जो सेकंड ब्लॉक में जैसे कि लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट दैट इज नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा, तो यही आंसर है। साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है इसमें कि इन्फेक्टिव मोनोन्यूक्लियोसिस कर सकता है, बर्किट्स लिम्फोमा कर सकता है और साथ में क्या कर सकता है, ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया कर सकता है। ठीक है, so that's the answer of question number 7, that is nasopharyngeal carcinoma, that is option number C। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें है ल्यूकोपीनिया ऑकर्स इन फॉलोइंग एक्सेप्ट। किस किस में ल्यूकोपीनिया हो जाता है, व्हाट इज ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब जो है, जो हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनका अमाउंट कम हो जाना। तो किस डिजीज़ में हमारा उनका अमाउंट कम हो जाता है, आंसर इज डी, दैट इज बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में कम हो जाता है, टाइफाइड, मीजल्स और हेपेटाइटिस में बढ़ जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ल्यूकोपीनिया, मतलब ल्यूकोसाइट्स किसमें कम हो जाते हैं। कॉजेज ऑफ ल्यूकोपीनिया, इसमें पहला पार्ट है दैट इज न्यूट्रोपीनिया।
न्यूट्रोपिनिया मतलब न्यूट्रोफिल्स का कम हो जाना। देखो अब ल्यूकोसाइट्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं और लिम्फोसाइट्स आते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स का कम हो जाना, न्यूट्रोफिल्स किस किस कंडीशन में कम हो जाते हैं, टाइफाइड में कम हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन में कम हो जाते हैं, प्रोटोजोल इन्फेक्शन में कम हो जाते हैं, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस में, ए प्लास्टिक एनीमिया में, और ड्रग कुछ सर्टेन टाइप की ड्रग्स होती हैं उनमें हो जाते हैं। तो न्यूट्रोपीनिया वगैरह मतलब न्यूट्रोफिल्स का कम हो जाना। लिम्फोसाइट्स का किस में कम हो जाते हैं, लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं लिम्फोमा में, रीनल फेलियर में, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ में और कुछ ड्रग्स में। अब इसमें नोट क्या है कि यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कॉजेज न्यूट्रोफीलिया, बैक्टीरियल में न्यूट्रोफीलिया हो जाता है, बढ़ जाता है। वायरल इन्फेक्शंस में लिम्फोसाइटोसिस होता है, बढ़ जाता है। पैरासिटिक इन्फेक्शंस में इयोसिनोफीलिया हो जाता है, बढ़ जाता है। और टी सेल इल्यूजन्स कॉजेज वायरल फंगल इन्फेक्शंस, ओके, और बी सेल इल्यूजन्स कॉजेज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो इस हिसाब से जो है इसका आंसर उन्होंने डी बनाया, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या था हमारे पास, दैट इज बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में हमारे जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनकी अमाउंट कम हो जाती है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। सो दैट्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्योंकि बाकी केसेस में क्या हो रहा है कि कोई एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी नहीं बढ़ रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ तो टोटल ऐसे नहीं बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है कुछ कम हो रहा है। दैट्स वाई इसका आंसर जो है सी आया। Next question is transaminase, that is question number 9, that is transaminase is increased in। transaminase मैं आपको बता देती हूँ, transaminase एक टाइप का एंजाइम है जो लिवर में मिलता है, हम इसको SGOT भी बोलते हैं। और मतलब SGOT रिलेटेड, इसको SGOT नहीं बोलते, सॉरी, SGOT रिलेटेड एंजाइम होता है ये। और इसमें हमने पूछा है कि भी किस कंडीशन में बढ़ जाता है, हेपेटाइटिस ए में बढ़ जाता है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में बढ़ जाता है, MI में बढ़ जाता है, या जॉन्डिस में बढ़ जाता है। तो क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि ट्रांसएमिनेज किससे रिलेटेड है, हमारा इससे लिवर से रिलेटेड है, ठीक है। तो लिवर से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, अब लिवर से रिलेटेड ऑप्शन बी और सी तो है नहीं, क्योंकि वो तो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस और मायोकार्डियल इंफेक्शन दैट इज टोटली रिलेटेड टू हार्ट। तो क्या रह गया, हेपेटाइटिस ए और जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस में क्या होता है कि बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होता है जॉन्डिस हो जाता है बॉडी में। और हेपेटाइटिस ए क्या होता है, हेपेटाइटिस ए और ई मैंने आपको बताया था, फीको रूसेवेल्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसका आंसर जो है दैट इज, आई एम सॉरी ओके ओके, इसका आंसर उन्होंने दिया हुआ है सी, दैट इज मायोकार्डियल इंफेक्शन, ओके। तो हो सकता है मैं किसी कहीं जगह पे रॉन्ग हूँ। Let's see to the explanation. Aspartate transaminase, that is AST, is also called as GOT, SGOT, and इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है इसमें, तो ये क्वेश्चन तो मेरा भी डाउट है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है, आई थिंक ये मैंने कहीं शायद MI में देखा था कि ट्रांसएमिनेज बढ़ जाता है उनमें, क्योंकि वो जो करते हैं अगर ब्लड एनॉल का वो करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि एंजाइम बढ़ा हुआ है। तो आई थिंक दिस इज़ द इंडिकेशन। और शायद हेपेटाइटिस ए और जॉन्डिस में नहीं बढ़ता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को मेडिसिन पढ़े हुए, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, मुझे कुछ चैप्टर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। बट या इट्स अ कन्फ्यूजन ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो सी टू योर मेडिसिन बुक्स एंड मेडिसिन सब्जेक्ट। ये जो यूनिट, ये जो टॉपिक है आपको लिवर वाले उस पर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, दैट इज हर्ब्स वायरस। हर्ब्स वायरस इज ए DNA वायरस, RNA वायरस, RNA DNA वायरस, और पार्शली RNA और पार्शली DNA, ये चीज़ पूछी गई है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड द आंसर इज ए, दैट हर्ब्स वायरस इज अ DNA वायरस। एंड आई थिंक इसकी कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल वी कैन सी टू दिस, ओके। तो इसमें काफ़ी सारे वायरसेस दे रखे हैं, POX विरिडे दे रखा है, हर्ब्स विरिडे दे रखा है, एडिनो विरिडे दे रखा है, पेपोवा विरिडे एंड हेपाडना विरिडे, ओके।
तो हर्ब्स विरिडे, ये सारे के सारे जो हैं डीएनए वायरसेस हैं, जिनके नाम लिए मैंने भी आपके, ये सारे डीएनए वायरसेस हैं। कौन से हैं? पीओएक्स विरिडे, हर्ब्स विरिडे, एडिनो विरिडे, पैपोवा विरिडे और हिपैडना विरिडे, ये सारे के सारे डीएनए वायरसेस हैं। आरएनए वायरसेस कौन से हैं? पीको आरएनए विरिडे, ऑर्थोमिक्सोविरिडे, पैरामिक्सोविरिडे, रियोविरिडे, रेट्रोवायरस, टोगा विरिडे, रैप्डोविरिडे and Flaviviridae and Calciviridae. There are so many, like I ever not a single time I've heard them. पहली बार पढ़ रही हूँ मैं सारे वायरसेस को, तो मुझे काफ़ी मुश्किल आ रही है इनको पढ़ने में, बट एक्चुअली इतने सारे वायरसेस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे वायरस हमारे सिलेबस में भी नहीं है। हमारे वायरस हमारे जो कंसेप्ट में मेन जो वायरस है वो हर्ब्स है, और हर्ब्स आपको बताना चाहिए कि वो डीआरएन वायरस है। आई थिंक इट्स द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 10 ऑफ क्वेश्चंस। और क्योंकि मेरी पहली वीडियो थी तो आई थिंक इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी, क्योंकि मैंने भी पहली बार क्वेश्चंस पढ़े हैं, मुझे भी आंसर्स नहीं पता थे, और थोड़ा सा एडिट और नॉट करने में भी थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, तो आई एम सॉरी फॉर दिस। बट आई थिंक अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो आपके लिए तो प्लीज़ लाइक इट, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोज़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू। Today we are going to start some of the questions that might